آپ کہو گے جمشید میرا جگری دوست ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا, لیکن ایک پیالی چائے بھی اپنے خرچے پہ اس کو نہیں پلاؤں گا میں. جمشید کہے گا ستار میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا, لیکن برگر بھی اگر تو کھائے گا تو کس کے خرچے پہ؟ اپنے خرچے. سب سے بڑا ریلیشن تو ماں اور باپ کا ہوتا ہے نا. ان کا مقدر جب اولڈ ہاؤس ہے تو پھر کیا رہ گیا یار ریلیشن؟ جمشید آپ باپ سے بڑا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی, میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ باپ اور ماں سے بڑا کون سا رشتہ ہے یار؟ جب بڑھاپے میں ان کا مقدر اولڈ ہاؤس ہے تو ریلیشن تو کیا کراچی میں کہتے ہیں تیل لینے گیا ریلیشن. پھر کہنا ہم ریلیشن پہ بلیو کرتے ہیں, ہمارے تعلقات بہت اچھے. کوئی اچھے نہیں ہے, آپ ٹائم پاس کرنے کے لیے, جیسے آپ کے ساتھ جہاز میں کوئی بندہ بیٹھا ہوتا ہے ٹائم پاس کرنے کے لیے ہلو ہائی کر لیتا ہے آدمی, لیکن اگر کوئی خطرہ ہو تو سب سے پہلے اس کو کھڑکی سے باہر نکال کے پھینکتا ہے کہ یار میں پہلے بچوں, یہ بعد میں جائے. تو اسلام از دا نیم آف ریلیشن. اسلام کس کا نام ہے؟ پائیدار ریلیشن, جس میں آپ دوسرے کے لیے قربانی دیتے ہو. اس ریلیشن پہ اسلام بلیو کرتا ہے. اور اس ریلیشن کی بیس پہ جو محبت ملتی ہے وہ محبت بھی کیا ہوتی ہے؟ پائیدار ہوتی ہے, جاندار محبت ہوتی ہے. باپ قربانی دیتا ہے اولاد کے لیے, سب سے پہلی قربانی نسل نہیں روکتا, وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہونے تو پیدا, میرے مال میں شریک ہوں گے نا, میری اولاد ہے, میں اپنا پیٹ کاٹ کے ان کو پالوں گا. میں یہاں سے ریلیشن کی ابتدا شروع. مادہ پرست آدمی کیا ریلیشن یہیں سے ختم. وہ کہتا ہے میں پیدا ہی نہیں کروں گا, کم وقت میرا مال کھا جائے گا, میں چیریٹی کر دوں گا, اپنی اولاد کو نہیں کھلاؤں گا میں. بتاؤ میں غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ مادہ ہمارے ملک میں بھی ایسا ہی ہے, پاکستان میں بھی, پوری دنیا کا کامن مسئلہ بن چکا ہے یہ. نسل کروڑ پتی لوگ ہیں, ہزار گز کے بنگلے میں جا کے کہتا ہوں یار تم ماں باپ کیسے رہتے ان دیواروں کی وحشت نہیں ہوتی ان کو دیکھ دیکھ کے؟ تو غریب کی جھوپڑی اچھی ہے جہاں بچوں کی آوازیں تو آتی ہیں اس کو. اتنی کنجوسی کہ میں اگر نسل, حالانکہ قدرت بتا رہی ہے, اللہ بتا رہا ہے کہ بچہ پیدا بعد میں ہوتا ہے, ماں کی چھاتیوں میں دودھ پہلے آتا ہے. تو اسلام کیا کرتا ہے؟ اور یہ سب باتیں میرے بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے. یہ سب کس نے ہمیں سکھائی ہے؟ یہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے قربانی کس نے دی ہے؟ نبی نے دی ہے. کتنی بڑی قربانی, بغیر کسی معاوضے کے. اگر آپ کا اللہ سے اور اپنی امت سے ریلیشن نہ ہوتا آپ یہ قربانی دیتے؟ عرب نے کہا, صحیح حدیث ہے, کہ اگر آپ کو عرب کی کوئی حسین ترین عورت سے نکاح کرنا ہے ہم آپ کے قدموں میں لا کے ڈالنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو دولت چاہیے ہم دولت دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن آپ توحید پر بات کرنا چھوڑ دو, آپ اسلام کی بات کرنا چھوڑ دو. آپ کے پاس کتنا بہترین آپشن تھا. آپ نے کیا فرمایا؟ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دیا جائے تو بھی میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. یہ کس سے ریلیشن کی بیس پہ قربانی دی جا رہی ہے؟ اللہ سے اور انسانوں سے. آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے, آپ انسانوں کے بھی خیر خواہ تھے. تو میرے بھائی مادہ پرستی جس کی طرف امریکہ والوں آپ لوگ جا رہے ہو نا, جس مادہ پرستی کی طرف, اور اپنی اولادوں کو بھی بھیج رہے ہو, تو اس کا انجام بہت بھیانک ہے. یہ نیچر سے بغاوت ہے. تو اسلام سب سے پہلے جو آپ کو ریلیشن سکھاتا ہے وہ کس سے؟ خدا سے. مادہ پرستی میں, سیکولرزم میں اور اسلام میں فرق یہ ہے کہ اگر سیکولر قوتیں جو ریلیشن آپ کو سکھاتی بھی ہے نا, تو جس سے ریلیشن سب سے کمزور ہونا چاہیے اسے سب سے طاقتور بنا دیتی ہیں, اور جس سے سب سے طاقتور ہونا چاہیے اس کی 2 ٹکے کی ویلیو ہوتی نہیں. مادہ پرست دنیا میں سب سے مضبوط ریلیشن گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ہوتا ہے, جو دونوں ایک دوسرے کی خواہش پوری کرتے ہیں بس. یہ ریلیشن تو میرے بھائی, میرا روٹی کے ساتھ بھی ہے. کیا خیال ہے جب مجھے شدید بھوک لگتی ہے تو میری نظر میں سب سے محبوب چیز کیا ہوتی ہے؟ روٹی. میں نے رات کھانا کھایا تھا, صبح ناشتہ نہیں کیا, جلدی نکلا تھا فلائٹ, اور مجھے ٹائٹ قسم کی بھوک لگ رہی تھی. تو ہمارے جو میزبان ہیں, کیا نام ہے, حضرت مولانا حفاظ صاحب, جب میں ایئرپورٹ اترا تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے لگ رہی ہے ٹائٹ والی نا, لنچ کرنے کا دل چاہ رہا تھا, بھوک. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب, اچھا جہاز میں نے کھانا نہیں کھایا, وہ اب حلال حرام کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے غیر مسلم کنٹریز میں, ان کو میں تنگ نہیں کرتا کہ حلال لے کر آؤ تو یہ لے کر آؤ, بھائی چھوڑو یار, گھروں کے پیچھے اتر کے کھا لینا. وہ بھی کہیں گے ایک مولوی جہاز میں آیا ہمارے لیے, ٹینشن بن گیا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کڑک چائے کا انتظام ہے. تو مجھے نا ایسا کانپنے لگا, میں تھر تھر یہ سمجھ رہے ہوں کہ جہاز میں کھا لیا جاؤں. اب شرم بھی آتی ہے آدمی کو بولتے تھے یار, لیکن میں نے کہا یار بے شرم بن جاؤ, بھوکے رہنے سے اچھے. ایک لطیفہ یاد آیا کہ ایک آدمی کے لیے رشتہ آیا, لڑکی والے نے بولا کہ ہم تمہیں اپنی بیٹی دیں گے اس شرط پہ کہ تم گھر داماد بن جاؤ اور ہمارے خرچے پہ پلنا پڑے گا. اس نے کہا گھر داماد, بے غیرتی, بے شرمی, قبول ہے. جب اس کے فائدے سوچے نا, یار بے غیرتی تو ہے لیکن فائدے کتنے ہیں, قبول. تو مجھے لگا کہ یار میں اگر غیرت اور حمیت دکھاؤں تو میں تو بھوکا, پھر رات کو جا کے کھانا ملے گا. میں نے کہا کھانا کھاؤں گا. خیر وہ چائے, وہ اصل میں وہ بعد میں پتا چلا وہ کھانا ہی کھلانا تھا. انہوں نے وہ لیبل اس پہ چائے پانی کا لگایا ہوا تھا. ہمارے پولیس والے کہتے ہیں نا چائے پانی کے پیسے, تو اس کا مطلب 5 روپے نہیں ہوتا, 5 روپے نہیں ہوتا کہ آپ چائے پکڑا دیں اس کو. تو مجھے ایک بات بتاؤ, یہ جو شہوت کا رشتہ ہے نا, خواہشات کا رشتہ, یہ تو ہمارا روٹی کے ساتھ بھی ہے. جب میں آیا انہوں نے کھانا رکھا تو مجھے بہت سخت بھوک لگ رہی تھی. جب پیٹ بھر گیا تو مجھے روٹی اچھی لگے گی کہ نہیں جی روٹی بڑی, میں روٹی کے فضائل نہیں بھائی, ہٹاؤ یار روٹی یہاں سے, ہٹاؤ. یہی گرل فرینڈ ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ جب تک جوان ہے, خوبصورت ہے, آپ کی خواہشات پوری کر رہی ہے, آپ بھی ہینڈسم ہے, تو ٹھیک ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ ہے جہاں ایک دوسرے کی چاہت ختم, چلو مارکیٹ سے شارٹ. بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا آدمی, دنیا چھوڑ سکتا ہے, بیوی چھوڑنا آسان. غیرت مند آدمیوں کی بات کر رہا ہوں, غیرتوں کی مارکیٹ میں کمی نہیں ہے. وہ تو پھر وہ آخری وقت تک آپ کے ساتھ رہتی ہے, آپ آخری وقت تک اس کے ساتھ رہتے ہو, مل کے اولادوں کو پالتے ہو. یہ ایک مبارک رشتہ ہے یہ.
اس رشتے یہ جو رشتہ ہے اس کی ویلیوز ہمارے دل میں کس نے ڈالی ہیں؟ اسلام نے. تو سب سے پہلے اسلام جو ہمیں بتاتا ہے کہ جو رشتہ تمہارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے خالق اور مخلوق. بنانے والے کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے. ہمیں جو رشتے دیے ماں باپ کے, بیوی بچوں کے, دوستوں کے اور مختلف, وہ سب دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اسلام کو اگر آپ چھوڑ دیتے ہو, دیکھو جس نے پیدا کیا ہے نا, اس سے ریلیشن بھی ہماری نیچر اور فطرت کا حصہ ہے. خدا کی تلاش انسان ہمیشہ سے کرتا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ہماری فطرت ہے خدا سے محبت کرنا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جن قوموں کو سچا خدا نہیں ملا انہوں نے جھوٹے خداؤں کو خدا بنا لیا. اس کی مثال ایسے, کچھ لوگ کہتے ہیں نا ہم انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہیں, کتا انہوں نے پالا ہوا ہوتا ہے. اگر آپ انڈیویجول رہنا پسند کرتے ہو, کتا کیوں پالا پھر آپ نے؟ اس کا مطلب آپ کو صحیح رشتہ ملا نہیں ہے, تو اس کا آلٹرنیٹ آپ نے کیا نکال لیا؟ کتا نکال لیا آپ نے. تو جن کو صحیح خدا نہیں ملتا پھر وہ اپنی عقل سے خدا تراشتے ہیں اور پھر وہ بت بناتے ہیں. کسی نے گائے کو بنا لیا, کسی نے بتوں کو بنا لیا, کسی نے سورج کی عبادت شروع کر دی, کسی نے چاند کی عبادت شروع کر دی, کسی نے آگ کی عبادت شروع کر دی. قرآن کہتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی عبادت مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس کی عبادت کرو جس نے سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے. یہ تو پیغمبروں نے بتایا. جب پیغمبر نہیں بتاتے تھے, جب جن قوموں کے پاس پیغمبر نہیں آئے یا پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی, انہوں نے بھی خدا کو تلاش کیا. سچا خدا نہیں ملا تو جھوٹے خدا کو بنا کے اس کی پرستش شروع کر دی, اور یہ صدیوں سے ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ انسان کی نیچر ہے, اس کو خدا چاہیے, اس کو گاڈ بولو چاہیے, تاکہ وہ اس سے راز و نیاز کی باتیں کر سکے, اس سے دعائیں مانگ سکے, اپنے غم دکھڑے اس کے سامنے بیان کر سکے, اس کے سامنے اپنے سر کو جھکا سکے. اسلام کا ہم پر احسان ہے کہ اس نے ہمیں سچے خدا کا بتا دیا. نہ بتاتا تو ہم یا تو شرک کر رہے ہوتے, اپنے ہاتھوں سے بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے جھک رہے ہوتے, یا نہیں, کتا تو نہیں پالتے, کتا کی عبادت تھوڑی ہوتی ہے. ہم جو ہے یا تو جھوٹے خدا کی یا ملحد ہوتے, خدا کا انکار کر دیتے, اور خدا کا انکار کر کے ایسی ایسی اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہوتے. ملحد کی ابتدا ہی مضحکہ خیز باتوں سے ہوتی ہے. جو ملحد لوگ ہیں نا خدا کے منکر ہیں, کہتے ہیں ہم سائنس کی بیس پہ, سائنس سے خدا ثابت نہیں ہے. سائنس سے خدا ثابت ہے, سائنس خدا کا انکار کر نہیں سکتی, کیونکہ سائنس کیا کہتی ہے, اس کائنات میں چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے. اس سے خود بخود پتہ چل رہا ہے بھائی چینجنگ تو آسان کام ہے, اس کے لیے چینجر چاہیے. تو کریٹر جو کریشن ہے وہ تو زیادہ مشکل کام ہے, وہ کریٹر کے بغیر کیسے ہو گیا؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اور بھائی چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن ہے, یہ سائنس کہتی ہے, مولوی صاحب نہیں کہہ رہے. سائنس کہتی ہے, ساری دنیا کے سائنسدان کہتے ہیں کچھ ہونے کے لیے کوئی انرجی ہونی چاہیے, کوئی جو چیز رکی ہوئی رکی رہے گی نا جب تک اس کو حرکت دینے کے لیے کوئی طاقت نہ ہو. تو کریشن تو زیادہ مشکل, کائنات خود سے وجود میں آ گئی اور آنے کے بعد اپنے آپ کو ہلانے میں ہلانے والے کی محتاج, رکنے میں رکنے والے کی محتاج. کیا عجیب بات ہے یار, یہ تو بات میں محتاج ہے, ہر کام میں یہ محتاج ہے, تو اپنے وجود میں بنانے والے کی محتاج کیوں نہیں ہے پھر یہ؟ تو یا تو آپ میرے بھائی اگر سید الانبیاء نے ہمیں سیدھا راستہ نہ بتایا ہوتا, یا تو ہم ملحد ہوتے اور اوٹ پٹانگ قسم کی لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے. ملحد کی ایک عادت دیکھو, ایک کام ملحد بڑا خطرناک کرتا ہے. جتنے بھی باطل لوگ ہیں نا, ان کا کوئی ایک ویک پوائنٹ ہوتا ہے, اس کو پکڑنا چاہیے, غیر ضروری بحث کبھی نہیں کرنی چاہیے. یہ باطل لوگ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, جو خدا کا انکار کرتے ہیں, آپ کو لے جائیں گے بندر کی طرف کہ ہم بندر سے ایوالو ہوئے, پھر وہ ہوئے ہیں, تو یہ تو سائنٹیفکلی کوئی خدا نہیں ہے. ان سے بولا کرو اسٹارٹنگ پوائنٹ پہ بات شروع کیا کرو, کائنات اسٹارٹ کیسے ہوئی ہے, یہاں اس کو پی جاتے ہیں. یہ صحیح ہے, یہ صحیح ہے. جیسے کسی نے آپ پہ الزام لگایا, بہت بڑا الزام لگایا کہ تم نے 100 بندے قتل کیے. آپ اس بحث میں نہیں پڑھ رہے, آپ کہہ رہے ہیں ایکچولی میں تو مسجد سے چپل چوری نہیں کی ہے, میں نے وہ بتی بھی میں نے نہیں چرائی, وہ ٹیوب لائٹ میں نے نہیں چرائی, اور اس کی ٹینکی سے پیٹرول میں نے تھوڑی چرایا, یار وہ کسی چرسی نے چرایا. بھائی صاحب ہم نے آپ پہ الزام ڈالے ہی نہیں ہے. ہم کہہ رہے ہیں جو 100 بندے تو نے قتل نہیں کیے, تمہارے گھر کے پاس سے لاشیں ملی ہیں, بندوق بھی تمہارے ہاتھ میں تھی, تم نے نہیں کیے تو کس نے کیے؟ پھر وہ کہا ایکچولی دیکھیں وہ روڈ بھی جو ہے وہ وہاں سے چپل میں نے نہیں چرائی. تو یہ اس کا مطلب یہ اصل مدعا سے بات کو کیا کر رہا ہے, ہٹا رہا ہے. یہ ایسے ہی جیسے آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہو, آپ کی آمدن کم ہوتی ہے, لڑکی والے سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں, آمدن. ایسا ہوا ایک بندے کے ساتھ, اس لیے میں سنا رہا ہوں. ملحد بھی یہی کام کرتا ہے. وہ رشتہ میں نہیں بھیجا تھا ان کو, لڑکی والا لڑکا کو بندہ ہو تو بتاؤ, تو میں نے کہا یہ بندہ ہی لگ رہا ہے دیکھنے میں, چلو دیکھنے میں تو لگ رہا ہے, باقی آمدن اس کی آپ دیکھ لیں کتنی ہے. تو اب وہ اس سے پوچھ رہے بیٹا تمہاری قوم کیا ہے, تمہارا خاندان کیا, ہر چیز کا بالکل صحیح جواب دے رہے ہیں. لیکن لڑکی والوں کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں, یہ صرف ایک شو مارنے کے لیے کہ ہم فیملی اور خاندانی روایت, اصل دیکھنا چاہتے ہیں کماتا کتنا ہے. اصل تو یہ سوال ہے نا. اب جب اصل سوال پہ آئے, اچھا بیٹا کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا ہوں میں. انہوں نے کہا شاید ٹرانسپورٹیشن کا مطلب یہاں سے اب کنٹینر جاتے ہوں گے اس کے یہاں سے وہاں. تو بیٹا کما کتنا لیتے ہو؟ اللہ کہہ دیا بہت کچھ ہے. اس سے پہلے ہر بات کا صحیح نام کیا ہے, فار ایگزامپل جمشید نام نہیں تھا, لیکن فار ایگزامپل جمشید, رہتے کہاں ہو؟ فلاں حیدری میں رہتا ہوں. گھر کا نمبر کیا ہے؟ گھر کا نمبر یہ. اما ابا کہاں رہتے ہیں؟ یہاں رہتے ہیں. بھائی بہن کتنے؟ ایک سوال کا ٹو دا پوائنٹ جواب. جب اوریجنل سوال پوچھا جا رہا ہے جو اصل مقصد تھا, کماتے کتنا ہو؟ اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ارے تو بہت کچھ ہے, کتنی ارننگ ہے؟ الحمدللہ اچھا گزارا. چلو یہ بھی آپ لوگ بھی سیکھ لو. اللہ کا دیا. اچھا چلو تم بتا دو کرتے کیا ہو؟ ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. ٹرانسپورٹیشن سے آگے نہیں بڑھ رہا. تو ان لوگ لڑکی والے, مجھے پرانی بات ہے, میں رشتے نہیں کراتا, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ جا کے دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کا کام ہے. میں نے کہا بتا بھائی تو بیٹھتا کہاں ہے؟ میں گیا
ट्रक स्टैंड में, अब पुरानी बात हो गई, उसको पता नहीं चलेगा मेरी बात हो रही है, ये वाकया कम से कम भी मेरा ख्याल 25-26 साल पुराना है, अब तो ट्रांसपोर्टेशन का काम भी छूट गया होगा उससे, इसको पता नहीं चलेगा, तो किसी की गीबत नहीं हो रही है। मैं गया तो बेचारा मजदूर था, अच्छी कोई हर्ज नहीं है मजदूर होने में, वो डब्बे लोड करता था ट्रॉलर की, यहां से ट्रांसपोर्टेशन, देख रहे हैं आप, इसमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन झूठ क्यों बोल रहे हो, घुमा क्यों रहे हो? तो कह रहे लड़की कैसे मिलेगी उसको, बात यही है। तो भाई फिर ऐसे की बेटी से करो वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता हो, अपने से ऊपर पे हाथ क्यों मार रहे हो यार तुम, ये तो गलत है ना, जितने हो औकात उस हिसाब से कर लो शादी। खैर, तो मुल्हिद पता है क्या करता है, जो एथियस्ट है, खुदा के मुनकिर है, हर सवाल का जवाब देते हैं, घुमाते हैं, एक्चुअली ये सेल बना था, फिर ये हुआ था, फिर यूं हुआ था, पानी के अंदर मछलियां थी, फिर बाहर आते आते इवॉल्व होकर टांगे लग गई, उनके चलना शुरू हो गए, जमशेद और सतार भाई बन वजूद में आ गए। फेंकी है, खुदा की कसम बहुत लंबी फेंकी है ये, जमशेद ऐसे नहीं बना, ये ऐसे ही बनाते हैं, पानी में एक सेल पैदा हुआ, पानी में एक सेल पैदा, कैसे पैदा हो गया ये जवाब पी जाएंगे। एक सेल जो पहली यूनिट है ना हयात की, इतना पेचीदा है, माहिरीन कहते हैं खरबों साल में भी लॉ ऑफ चांस है ना, बाई चांस हो जाना, खरबों साल में भी बाई चांस ऐसी चीज नहीं बन सकती, और ऐसी चीज बन गई जिसमें इवॉल्व होने के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गए, ऐसे सॉफ्टवेयर जिन्होंने करोड़ों खरबों साल के बाद जाके जमशेद बनना था, ये नहीं हो सकता भाई। तो यहां से शुरू करते हैं कि वो पानी में एक सेल पैदा हुआ, फिर मछली बनी, फिर मछली ने बाहर आई, वो ध्रुव राठी का है ना, देख लें आप, वो यही कह रहा था, ध्रुव मछली जो है बाहर आना शुरू हुई, तो वो बाहर आती वो एकदम आहिस्ता आहिस्ता बाहर के माहौल से मुतासर हुई, फिर जमीन पे रंगना। अब भाई नहीं हो सकता कि करोड़ों साल में हुआ है, वो भाई करोड़ों में नहीं हो सकता, चलो अरबों साल में हुआ है, अबे भाई अरबों में खरबों में, सालों की कमी इनके पास नहीं। मैं बार बार कहता हूं, एक मेरे पास सालों की कमी नहीं है, एक इनके पास सालों की कमी नहीं है, मेरे सालों से बहुत अलग है। तो खरबों, भाई खरबों में भी नहीं हो सकता यार ऐसे, चलो मान लिया ऐसे हुआ है, पहली यूनिट, पहली इकाई, ये कैसे वजूद में आई भाई, और उससे इतनी चीजें बन गई यार। और कमाल की बात, हम ऐसे दौर में पैदा हुए हैं जब हर चीज इवॉल्व होकर अपनी इंतहा तक पहुंच चुकी है, ये तो अलग अलग सी इत्तेफाक हो गया, यानी हर जानवर को जिस हिसाब से होना चाहिए था, बिल्कुल कोई भी ऐसा नहीं है जो अभी रास्ते में सफर कर रहा हो है, सब शेर अपने एंडिंग पॉइंट पे पहुंच चुका है, शेर बन चुका है, क्योंकि जंगल में जिस हिसाब से शेर को होना चाहिए वो बिल्कुल एग्जैक्ट उसी हिसाब से, शहद की मक्खी को जैसा होना चाहिए बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी ही है। तो कोई तो ऐसा जानवर होना जो अभी उस, मैं तो इस सादा सा सवाल पूछता हूं, अगर हम इवॉल्व हुए हैं तो बंदर और इंसान के दरमियान के जो स्टेशन थे वो कहां गए? कुछ लोग ऐसे होने चाहिए थे बंदरों में, वो इवॉल्व होते होते भी रास्ते में हो, यानी अभी पूरे जमशेद बने ना हो, आधे बंदर हो आधे क्या हो, और कुछ ऐसे हो जो 75% बंदर हो 25% इंसान हो, कुछ ऐसे जो 25% इंसान हो, 25% बंदर हो 75% इंसान हो, ऐसे लाखों होने चाहिए। धड़ाम से बंदर एकदम से क्या सुबह उठ के इंसान बन गया क्या? तो मेरे भाई फेंकने पर गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, फेंकते रहो। खुदा का इंकार करना जुर्म है बहुत बड़ा, कुरान कह रहे नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें जो खुदा के मुनकिर है। देखो इस्लाम कभी साइंस के खिलाफ बात नहीं करता, लेकिन साइंस से साबित तो हो ना, वो ये साबित थोड़ी तो हवाई फायरिंग है ये, मैं भी कहते शायद ऐसे हुआ, शायद किसी के, हर एथियस्ट जो नजरिया इर्तिका है ना उसको अलग स्टाइल में बयान कर रहा होता है, तो कोई किसी एक जगह टिकते नहीं है। जब दावे में ही कोई टिक नहीं रहा है तो उसके दावे को थोड़ी सुना जाता है। आपने अदालत में केस किया, जमशेद ने मेरे 1 लाख रुपए चुराए हैं, गवाह पेश किया आपने, तो गवाह आके कह रहे नहीं 50,000 चुराए हैं, दूसरा गवाह कह रहे 75 चुराए हैं, तीसरा कह रहे हफ्ते को चुराए हैं, चौथा कह रहे इतवार को चुराए हैं, पांचवा गवाह कह रहे कि नहीं जी वो गलती से चुराए हैं, वो कह रहे जान के चुराए हैं। अदालत कह भाई निकलो यहां से, टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा। 200 साल से ये जो नजरिया इर्तिका है ना कि हम बंदर से इंसान बने, साइंस इस पे 200 साल से तहकीक कर रही है, अब तक ये साबित नहीं हुआ। 200 साल बहुत होते हैं किसी चीज को साबित करने के लिए, 200 साल तक भी साबित नहीं हुआ ना, इसका मतलब नहीं होगा साबित, क़यामत तक ये ऐसे ही रहेगा हवाई। तो खैर मैं कहां से कहां चला गया, मेरा मकसद आज इस टॉपिक में तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रहमतुल आलमीन होना बयान करना है, लेकिन मेरी बयान में ना तमहीद बाज़ दफा लंबी हो जाती है, तमहीद लंबी, मैं बयान को जल्दी से समेटता हूं। देखो तो इस्लाम ने सबसे पहले हमें बताया तुम्हारा सबसे मजबूत रिश्ता किससे होना चाहिए? अल्लाह। ये इस्लाम का भी, कुरान का भी, और सैयदुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हम पर एहसान। आज साइंस की इस तरक्की के दौर में भी अगर हम 1400 साल पहले के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदुल अंबिया को फॉलो ना करें, खुदा की कसम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से हम सही खुदा को तलाश नहीं कर सकते। इसके लिए मुझे और आपको फॉलो किसको करना पड़ेगा? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आपने हमें बताया एक खुदा है, समझ रहे हो, एक है, उसके साथ कोई शरीक नहीं है। फिर उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हमें पता चल जाता है एक खुदा है, उससे रिलेशन कैसे कायम होगा? हम साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से या आजकल के प्रोफेसरों की मदद से उससे फैसला कर सकते थे कि हमें क्या करना है। कोई क्या कर रहा होता, कोई क्या कर रहा होता, अपनी अपनी अलग अखबल तरीके से इबादतें निकाली हुई होती। पश्तो में कहते हैं अखबल तरीका, हर आदमी ने अपना इबादत का एक स्टाइल निकाला हुआ होता, कोई क्या कर रहा होता। आप देख लो मुख्तलिफ मजहबों में कुछ सारी जिंदगी कपड़े नहीं पहनते कि भगवान इससे खुश होता है, और कुछ क्या करते हैं, कोई अलग अलग किस्म के काम कर रहे होते हैं। मैं नहीं तफसील में जाता, किसी मजहब के वो मकसद नहीं है। तो इस्लाम ने बताया कि खुदा किससे खुश होगा, इबादत करनी है तो इबादत के उसने तरीके बता दिए। नंबर 1, 5 टाइम नमाज पढ़नी है। ऐसा खूबसूरत सेलेक्टेड तरीका, ये इंसान की सिलेक्शन, इंसानों की सिलेक्शन है ना, देख लो जो इंसानों, जो इस्लाम के मुतबादिल जो इबादत के तरीके, वो किसकी सिलेक्शन है? वो इंसानों की। ये सिलेक्शन किसकी है? अल्लाह की। उसने बताया 5 टाइम वुजू करना है, तहारत वसियाबा का फताहिर, जिस्म को पाक रखना, कपड़ों को पाक रखना, नाक को साफ करना। 15 दफा हम नाक साफ करते हैं, 15 दफा हम
दांत साफ करते हैं, 15 दफा हम चेहरे को धोते हैं, गुसल। और ये उस जमाने में तालीम दी जा रही है जब पानी दुनिया की महंगी तरीन चीज था अरबों के लिए। अब भी पेट्रोल बाज इलाकों में सस्ता है, वहां हुक्म दिया जा रहा है 5 टाइम वुजू करना है। अगर ये इंसान की सिलेक्शन होती, भाई अरब में पानी नहीं था, बहुत मुश्किल पानी का हुसूल, ये कह दिया जाता कभी कभार मुंह भी धो लेना चाहिए। क्या ख्याल है? 5 टाइम, फिर गुसल, गुसल के हकाम। तो अल्लाह से रिलेशन बनाया और उसमें गुसल है, नमाज है, फिर ज़कात है। और कमाल है, सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात अपने ऊपर और अपने खानदान पे हराम कर दी। देखो, मैं अगर आपको चंदे की तरगीब दे रहा हूं, आपका दिल में आएगा, लगता है मुफ्ती साहब अपने लिए चंदा लेना चाहिए। तो वहम होता है ना कि नहीं होता? लगता है। अगर मैं आपको फजाइल सुना रहा हूं हदिये के, उलमा को हदिया देना बहुत सवाब है, तो उलमा से कौन मुराद होगा? आपके जहन में यही आएगा, मुफ्ती साहब लग रहा है कुछ, लग रहा है 19 करके ना पछता रहे हैं, यही जहन जाता है ना इस तरफ। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत ऐसी बेदाग, आपने सदकात की ऐसी तरगीब दी जैसी किसी मजहब में नहीं है। लेकिन एक तरफ आपके घर में 40 दिन चूल्हा नहीं जलता, और आपने अपने ऊपर, अपने खानदान के ऊपर कयामत तक के लिए सदके को क्या कर दिया? हराम। सदका नहीं ले सकते। सैयद पे कोई ज़कात दोगे लग जाएगी ना? कोई देखा ऐसा है भाई? कोई मोटिवेशनल स्पीकर ऐसा देखा आपने जो फ्री में आपको वर्कशॉप भी करा रहा हूं? आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर बताते हैं ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता, वही बात बताने के 1.5 लाख रुपए लेते हैं, पता है आपको? जो बताते हैं सब कुछ पैसा ही नहीं होता। एक मोटिवेशनल स्पीकर है, मशहूर है, लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा, गीबत मकसद नहीं है। हमने उनको बहुत बुलाया अपने मदरसे में, हालांकि उलमा को जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी चले यार, आपके हिकमत की बात कहीं से भी मिली। हमने कहा ये तलबा है, थोड़ा रेट कम कर लें आप। रेट कम पे भी एग्री नहीं हुए। हमने कहा वाह यार, हम तो ऐसा बदगुमान, हमने कहा पूरी दुनिया में आप बातें कर रहे हो। सारे ऐसे नहीं होते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं। तो नबी ने अपने ऊपर सदके को, ज़कात को, सदकात वाजिबा जो भी है अपने ऊपर, और क़यामत तक अपनी नस्ल पे, अपनी औलाद पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदकात को क्या कर दिया? हराम कर दिया। तो भाई ये क्या है? कुर्बानी किसके लिए? रिलेशन के लिए। और चलो आगे, अबू तलहा अंसारी आए नबी के पास, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल की हैं, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक महबूब चीज अल्लाह की राह में सदका नहीं करोगे नेकी तक नहीं पहुंच सकते। या रसूल अल्लाह, मेरे पास एक कीमती बाग है, मैं वो सदका करना चाहता हूं। आपने फरमाया वाह वाह, इतना कीमती माल। मेरे पास कोई आता, भाई मेरी तो नीयत खराब होती, दे दे मुझे, दे दे यार। 20 मसले से आते हैं हमारे दिल में, क्या ख्याल है? तो नबी ने क्या फरमाया? अपने चचाजाद भाइयों को दे दो। क्यों? नबी की तबलीग ये थी कि रिश्तेदारी जोड़ना सबसे बड़ी इबादत, और रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। तो उसके लिए आप प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं कि भाई अगर सदके की इब्तिदा करनी है, तुम्हारे चचाजाद भाई गरीब है, तो बिस्मिल्लाह करो, चचाजाद भाइयों को दो। साहबा ये सब चीजें सय्यदुल अंबिया में देख रहे थे, तभी तो आपकी बातों पे कटने और मरने के लिए तैयार हुए वो, कि ये सिर्फ रिश्तेदारी के फजाइल नहीं बयान कर रहे, बल्कि खर्च करवा रहे हैं क्या अपने चचाजाद भाइयों को। आज है कोई अपने चचाजाद भाई को अपना चलता हुआ बिजनेस दे दे? मैं समझा पा रहा हूं, इस्लाम के रिलेशन में और मादा परस्तों के रिलेशन में जमीन और आसमान का फर्क है। फिर इस्लाम ने रिलेशन में बताया कि ऐसी औरत से निकाह करो जो तुम्हें औलाद दे कसरत से, क्योंकि उससे तुम्हारा रिलेशन क्या होगा? मजबूत। बच्चे जब ज्यादा होते हैं, डिवोर्स का इम्कान उसी हिसाब से कम हो जाता है। आज तलाकें क्यों हो रही हैं? औलाद ही नहीं है तो एक आध तो थोड़ी सी बड़ी हो गई, पली जाएगी यार। पहले आड़ी तिरछी शादियां होती थी, अपने बाप दादाओं में देखो, कान से पकड़ के शादी करा दी। अच्छा भला क्वालिफाइड आदमी, उसकी शादी किससे हो गई? और वो बड़ी क्वालिफाइड है, खूबसूरत है, जमशेद को से माफी चाहता हूं, और ये अजीब सा, और ये तिरछे चलाते थे यार। कोई बात नहीं यार, बच्चों की खातिर क्या कर लो यार। इमाम अहमद बिन हंबल के पास एक शख्स आया कि मेरी बीवी मुझे पसंद नहीं है, मुझे मोहब्बत नहीं, मैं तलाक देना चाहता हूं। उन्होंने क्या किया? सब घरों में मोहब्बत होती है भाई, दुनिया मुसाफिर खाना है भाई, कोई मोहब्बत से चलते हैं, कोई बगैर मोहब्बत के। चलाओ, बड़े फायदे। अल्लाह ने कुरान में क्या कहा? आसान तकरहू शैअन व यजअलुल्लाहु फीही खैरन कसीरा। हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करो, अल्लाह ने उसमें बहुत सारी खैर डाली भी हो। हमारे जानने वाले थे, उनकी बेगम बहुत बदअखलाक थी, बहुत बदअखलाक। ये वाकया 25-30 साल पुराना है। इतनी बदअखलाक, उन्होंने कहा यार छोड़ देता हूं इसको मैं। तो उनके किसी उस्ताद ने उनको समझाया, छोड़ो यार, कुरान क्या कह रहा है कि हो सकता है तुम्हें एक चीज नापसंद हो, अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए क्या पैदा कर दे? खैर। तो 25 साल के बाद मुझे बता रहे थे अपने बेटों को दिखा के, ये खैर पैदा की अल्लाह ने। और वाकई वो इतने नेक बच्चे हैं, इतने नेक, आदमी हैरान होता है यार, इतने नेक बच्चे। तो क्या था कि वो बता रहे थे, देखो यार ये अल्लाह ने खैर पैदा कर दी। तो कुर्बानी ये है, ये वाला रिलेशन है जो कौन मांगता है? इस्लाम। तो उसमें सबसे पहले अल्लाह से रिलेशन, फिर औलाद, मियाँ बीवी का रिश्ता, आपस में कुर्बानी देनी एक दूसरे के लिए। शौहर का काम है खिलाना और औरत का काम है शौहर की इताअत करना। मैंने एआई से अपने बारे में एक दिन पूछा, मुफ्ती तारिक मसूद कौन है? एआई ने बोला ये आदमी औरतों को बोलता है शौहर को सरबरा मानो। मैंने कहा किधर से जाके इसने दुखती नफ्स पकड़ी है, हालांकि मैं तो बहुत सारी बातें कर रहा हूं, तो इसने वो चीज निकाली है जो मार्केट में ना, जो सबसे ज्यादा यानी अलग से कोई है। तो भाई मैं ये औरतों के फायदे के लिए कहता हूं, क्योंकि आदमी है, वो आदमी है। आप उसके को सरबरा मानेंगी, उसको एक दिल बड़ा होगा उसका, क्योंकि अल्लाह ने फितरत मर्द की मर्द ही रहेगा ना। देखो मर्द औरत थोड़ी बन जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप का इरशाद क्या है कि मैं दो, डोनाल्ड ट्रंप ने फरमाया, अल्लाह रसूल की बात समझ में नहीं आ रही तो चलो डोनाल्ड ट्रंप की मान लो भाई। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या, मैं दो जेंडर पे यकीन रखता हूं, एक मर्द और एक औरत।
तो औरत ही रहेगी, आदमी बनने की कोशिश न करे और आदमी ही रहेगा। औरत बनने की कोशिश न करे, गेटअप के लिहाज से भी इस्लाम ने कहा आदमी बने, और एटीट्यूड उसका आदमियों वाला होना चाहिए। तो आदमी चाहता है, खवातीन से मैं पेश की माजरत, आदमी चाहता है मैं जब घर में आया करूं तो देखने में लगे कि मैं आदमी हूं मेरे साथ वो सलूक हो कि मुझे ऐसा महसूस हो कि हस्बैंड कौन हूं, मैं हूं। उसको महसूस ही नहीं हो रहा। घर में आता है, वो एक आदमी ने कहा कि दोस्त है ना, एक ने दूसरे से पूछा यार तेरी कैसी गुजर रही है घर में। अब उसको ये तो बताते हुए बुरा लग रहा था कि मैं गुलाम बना हुआ हूं, लेकिन उसने कहा यार ऐसे तरीके से बताओ कि छूट भी ना हो और इज्जत भी हो जाए। कह रहा कुछ नहीं, मैं जब सुबह उठता हूं तो चाय तो मैं खुद ही बनाता हूं क्योंकि मुझे चाय अपनी हाथ की पसंद है, तो इसलिए मैं तेरी भाभी को तंग नहीं करता। नाश्ता कहते हैं, नाश्ता तो फिर मैं ब्रेड वगैरह रखी होती है, मैं तो चाय बना लिया तो ब्रेड पे दो मक्खन लगा के खा लो, क्या जा रहा है इस काम के लिए ब्रेड पे मक्खन लगाने के लिए क्या उठाया आदमी। और वो इस तरीके कहते हैं जब मैं उठ ही गया हूं तो इस तरीके भी कर ही लो यार। कह रहे लंच तो कहता है वो ऑफिस में ही हो जाता है, जब शाम को आता हूं तो चाय पे वो तो तुझे पता है मैंने बताया था सुबह मैं खुद ही बना के पीता हूं वो भी मैं बना ही लेता हूं। और जब मैं सोचता हूं कि यार जब मैंने सुबह यानी बेगम को तंग नहीं किया, लंच के लिए भी, सुबह नाश्ते के लिए भी, चाय के लिए, डिनर में क्या तंग करना है यार। जब डिनर किया तो बर्तन रह गए, आपको क्या है यार, हाथी निकल गया, तुम रह गए, बर्तन भी धो देता हूं। तो अल्लाह का शुक्र है बड़ी अच्छी गुजर रही है। तू सुना, कहते हैं मेरी भी कुत्ते जैसी गुजर रही है, लेकिन मुझे ऐसे बताना नहीं आता जैसे तूने बताया। कह रहे गुजर तो मेरी भी ऐसी रही है, लेकिन मुझे इस तरह से बताना नहीं आता। समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो जी पॉइंट टू बी नोटेड। तो मेरे भाई रिलेशन के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, समझ रहे हो। आपकी जिंदगी में जब आपकी वाइफ आई है तो बस वो है, इधर उधर औरतों पे नजरें मत टिकाओ। अल्लाह ने हमारे, देखो गैर मुस्लिम देखेगा, बल्कि वो जो नहीं देख रहे होते उस पर ताजुब कर रहे होते हैं। तो अल्लाह ने कानून बना दिया ना, यगुद्दू मिन अबसारिहिम ना, आपके लिए कौन है, आपकी बीवी। इधर उधर झांकने कितनी, मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद फरमाते थे रहमहुल्लाह ताला कि आपकी बेगम कितनी बदसूरत हो, जब आपने एक दफा सोच समझ के शादी कर ली तो ये समझो कि अल्लाह ने इससे ज्यादा खूबसूरत मेरे लिए कोई पैदा नहीं किया। शैतान कहेगा नहीं भी बहुत सारी खूबसूरत होंगी, भाई मेरे लिए सबसे खूबसूरत कौन थी, ये थी। इससे खुश भी रहता है इंसान, वरना मेरे भाई कंपटीशन इतना है ना दुनिया में, ऐसे तो मेरे भाई वो तो आपके एंड ही नहीं है फिर तो नहीं, वो तो 4 के बाद भी हवस खत्म नहीं होगी, वो तो कंपटीशन तो ये तो है खत्म ही नहीं होगा कभी भी। हवस, नबी ने देखो जिसके दिल में हवस होना दुनिया की, नबी की सही हदीस है कि कब्र की मिट्टी उसका पेट भरेगी, वो कभी भी खुश जिंदगी नहीं गुजार सकता। खुश वही होगा जो कनात से काम ले, जो है मेरी किस्मत का अल्लाह का दिया, मेरे पास बहुत कुछ है। लोग कहेंगे नहीं उसके पास तो तेरे से ज्यादा अच्छी गाड़ी है, उसके पास तो ज्यादा अच्छा घर है, भाई वो उसके लिए, मेरे लिए अल्लाह ने जो मेरे लिए इंतखाब किया वो सबसे बेहतर है। तो ये हमें किसने बताया भाई, ये इस्लाम की तालीमात है। बात को बस मैं समेट रहा हूं। तो मेरे भाई बस 2-4 मिनट लेट कर दें, नमाज के बाद सवाल, मैं तो बैठा रहूंगा फजर तक, इसलिए मुझे रोकना पड़ता है, ब्रेक लगानी पड़ती है। ना बस मैं बयान 4-5 मिनट में खत्म कर रहा हूं, तो फिर नमाज पढ़ते हैं, सवाल जवाब का सेशन नमाज के बाद होगा। बस मैं जल्दी से बयान को समेट के खत्म करता हूं। तो देखो मेरे भाई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें रिलेशन सिखाए। मैं आपको वो जल्दी से बता दूं, मैंने जो कहा ना वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तमाम जहान वालों के लिए अल्लाह ने नबी को रहमत बनाया है। तो इस्लाम रहमत है तमाम जहान वालों के लिए। नबी ने इस्लाम पेश किया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुकूक बयान किए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के हुकूक बयान किए। आज अगर हमारे पास नबी की तालीमात ना होती तो माओ को वो हुकूक नहीं मिल रहे होते जो मिलने चाहिए। हमें बाप के, तो आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, बाप के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, औलाद के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन। औलाद के हुकूक भी नबी ने बयान किए। नबी ने अपनी पोती को, अपनी नवासी को, बेटी की बेटी को उठा के 4 रकतों कंधे पे बिठा के आपने इमामत की है। अरब बेटियों से ऐसी नफरत करते थे, जिंदा दफन करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कंधे पे अपनी नवासी को बिठा के पूरी नमाज पढ़ के उनको जो इज्जत दी, अरब के दिलों से बेटियों की नफरत को निकालने के लिए। आज हमारी सोसाइटी, मुस्लिम मुआशरा जो बेटियों से मोहब्बत करता है, वो किसकी तालीमात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सईदा फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे, तो नबी बेटियों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन हुए कि नहीं हुए। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेटों के लिए भी रहमतुल लिल आलमीन, बच्चों के लिए भी। अनस इब्न मालिक कहते हैं मैंने 10 साल नबी की खिदमत की, नबी ने कभी 10 साल में मारना तो दूर की बात डांटा भी नहीं। कोई काम कर लिया, नहीं किया तो भी ठीक, कर लिया तो भी ठीक। फरमाते मुझे एक दफा काम से भेजा, मैं बच्चों में खेलने लगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देर हुई, आप आके खड़े हुए, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा, नबी खड़े हुए मुस्कुरा रहे। मेरे और आपका क्या एटीट्यूड होता। हम कराची, यहां तो आपका बड़ा तमीज से गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, कराची में होते उल्लू के पट्टे और पता नहीं क्या क्या, जो कुछ गालियां तो मैं यहां नहीं दे सकता, कभी अकेले आए तो मैं बताऊंगा किस किस्म की गालियां, मस्जिद का हिसाब से मुनासिब नहीं है, और बयान भी दीनी चल रहा है। तो क्या कुछ नहीं होता, चपाटे लगते हैं अलग रखे। तो हजरत अनस इब्न मालिक की मिसाल हमारे सामने। आप बच्चों के लिए भी रहमत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जानवरों के लिए रहमत। इस्लाम में ये नहीं है कि जानवर को जिंदा कढ़ाई में डाल दें। आज दुनिया के बहुत से ममालिक में ऐसा होता है, यूट्यूब पे वीडियोस पड़ी हुई है, जला देते हैं जिंदा जानवरों को। ला युअज़्ज़िबु बिन्नार इल्ला रब्बुन नार, फरमाया आग का अजाब आग बनाने वाले के सिवा कोई भी नहीं दे सकता। फरमाया जब जबा करना हो छुरी को तेज कर लो। एक नबी ने फरमाया कि एक चींटी ने किसी पैगंबर को काटा, उस पैगंबर ने तमाम चींटियों को मार दिया। अल्लाह ने वही की, एक ने काटा था, बाकियों को आपने कत्ल क्यों किया। पहले पैगंबर का वाकया है, हमारे नबी हमें क्यों सिखा रहे हैं कि एक चींटी का बदला दूसरी चींटियों से नहीं लिया। अगर घर में तंग कर रही है एक अलग बात है,
तो एक चींटी मारना जिस मजहब में जायज ना हो उसको कहते हैं दहशतगर्दी सिखा रहे हैं। अजीब बात है या नहीं? जिस मजहब में बिला वजह एक चींटी मारने की इजाजत नहीं है, उस मजहब के बारे में मशहूर क्या किया हुआ है, मौलवी दहशतगर्द होते हैं, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी, हजरत आयशा आपकी ज़ौजा का बयान है कि पूरी जिंदगी किसी औरत पे हाथ नहीं उठाया, किसी शख्स पे हाथ नहीं उठाया सिवाय मैदान जंग के। मैदान जंग में तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहादुरी थी। तो अखलाक नबी ने सिखाए 1400 साल पहले, मामलात किसने सिखाए? आपको पता है कुछ मुल्क दुनिया में ऐसे हैं जो सहाबा कराम की तिजारत में ईमानदारी को देख के पूरे पूरे कौमें कन्वर्ट हुई हैं। ये ईमानदारी किसने सिखाई उनको? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ये टॉपिक बहुत लंबा है, जिस पहलू में भी हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमें रहमतुल लिल आलमीन होना समझ में आता है। और ये कुरान की बलागत है, कुरान का मोजज़ा है। 1400 साल पहले कुरान ने कह दिया था कि आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत है, और आज हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम में जो रहमत का अंसर है वो चढ़ते सूरज की तरह नजर आ रहा है। हाँ, किसी की आंखें खराब हो, दिल की बसीरत अंधी हो गई हो, उसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। अल्लाह ताला हमें समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। खुलासा यही है मेरे भाई, आप अमेरिका में रहते हो, इस्लाम की कदर करो, साइंसी तरक्की भी करो, मुसलमान को तालीम में बहुत आगे निकलना है। जितना आगे निकले उससे 10 गुना ज्यादा आगे निकलो। ये तो हमारा वर्षा है भाई। असल में तो हमने साइंसी तरक्की की बुनियादें रखी है, इस्लाम के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है। हम पीछे रह गए, उसमें ये लोग आगे निकल गए। तो आप मुल्क के कवानीन को भी फॉलो करो, मुल्क की कानून मत तोड़ो। मजहब आपको कतई इजाजत नहीं देता। ये भी एक बड़ा उल्टा मसला है मुसलमानों के साथ। बाज लोगों के साथ टैक्स में गड़बड़ कर रहे होते हैं और फिर कमाल के माशाल्लाह ऐसे डंडी मारी, ऐसे टोपी कराई, मैंने ऐसे ये किया, टोपियों का बिजनेस चल रहा है। तो अच्छे शहरी बन के रहो ताकि तुम्हारा इमेज दुनिया के, यूसुफ अलैहिस्सलाम की सीरत हमारे सामने, वो गैर मुस्लिम स्टेट में थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम कैसी अच्छी जिंदगी गुजारी उन्होंने, तो आप ये गैर मुस्लिम स्टेट में हो, यहाँ गैर मुस्लिम कहेंगे ये हमसे ज्यादा अच्छे शहरी है। तो देखो इस्लाम में इतना हुस्न है ना कि अगर मुसलमान इंसान का बच्चा बन जाए ना, इस्लाम की टक्कर का कोई मजहब है नहीं फिर। तो हमारे साथ मसला है, मसला इस्लाम के साथ नहीं है, मेरे और आपके साथ मसला है, जमशेद के साथ मसला है। अल्लाह समझने अमल की तौफीक अता फरमाए।